Hello, welcome. So you know what the vlog is. You've clicked on the thumbnail. So welcome or welcome back to my channel. And today is D day. Today is the day that we are going to Bali, and today is also the day that I start vlogging. I've always wanted to travel vlogs all my life, right? I said this time and again that travel is the one thing that I've always felt that is my purpose in life. It is something that I want to do, something that I want to keep on doing, and probably what drives me to do anything and everything that I do in life. So we're going to Bali. The time right now is 4:40 p.m. We leave home in about half an hour. My flight is at 9:55 p.m. and I'm going to Bali for like more than 10 days, right? 10, 11 days, and I'm going to be vlogging every little piece of it. I'm going with my parents, and it is going to be an extremely exciting trip. I've planned a lot. I've manifested this trip a lot, right? I went to Bali for the first time in May 2024, and there was no doubt that I was going to go back to that place sometime soon. And it has taken me 2 years, but I'm going again, and I want to keep on going, right? After Thailand, it is like the one place that just drives me and just makes me want to go back, and just because how good it is. तो अब यही है, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द एयरपोर्ट. This is not the outfit, right? This is a part of the outfit. Do not worry, I'm not in the Bali zone yet, but this can very well be one whole outfit when I reach Bali. So I'm very excited, and if you stick along for whatever content that I post from this trip, you're going to realize that it's going to get very fun. By the time this video goes out, I will have another Instagram page that is specifically for travel, because travel content is something that I want to keep on doing. It is something that I want to improve on as time goes, and it is just something that I want to put out in the world. So the next time that I'm going to see you is going to be at the airport, and I just hope that you have as much fun as I'm going to have in this trip watching me and the content that I put out there. I'm going to come with a lot of content, so the Bali vlogs are going to continue for like weeks and weeks, because I've literally bought this 1 TB SSD that I'm going to fill up when I come from Bali. So it's going to be a lot of content. There's going to be a lot of short form, there's going to be a lot of long form content, and it's going to be everywhere on my Instagram, on YouTube. I mean, my life for the next 15 days is just this trip, right? And there is no other way that I want my life to be. This moment right now, me preparing and getting ready for the airport, it is my favorite moment every time I do this. It is like the one thing that I love doing. I love getting ready in general, but getting ready for the airport, it just has a very different kick, and it drives me insane. In the next clip, I'm going to be at the airport, and you're going to realize how fun and how excited I am for the trip. मेरे को लग रहा था 5:15 पे निकल के हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि 10 बजे की फ़्लाइट है, मगर फिर हमको ट्रैफिक मिल गया भाई, और हमें पहुंचते पहुंचते 6:45 ही हो गया, तो हम डॉट 3 घंटा पहले ही पहुंचे थे एयरपोर्ट. दिल्ली जस्ट मेक्स यू रियलाइज़ कि नहीं निकल रहे हो तुम जल्दी, तुम टाइम पे ही हो. अगर तुम जितना मर्जी तुम्हें लग रहा है कि तुम जल्दी हो, तुम जल्दी नहीं हो. एंड वी वर वेलकम्ड टू द एयरपोर्ट विद दिस वेरी ब्यूटिफुल सनसेट, probably just signifying all the beautiful sunsets that we were about to see all throughout the trip. And I don't know, somehow just reaching the airport is like a very very good feeling. मेरे को जब भी मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मेरे को बस आई जस्ट गेट इन टू द वेकेशन मोड. एंड अगर मैं एयरपोर्ट कभी रैंडमली किसी को पिक करने में जाता हूँ ना, मेरे को तब भी इतनी अच्छी फील आती है, क्योंकि आई जस्ट लव द वाइब ऑफ द एयरपोर्ट. एंड दिस फ्रेम, दिस टर्मिनल 3 फ्रेम राइट हियर इज़ लाइक माई फेवरेट फ्रेम टू लुक एट. इट इज़ माई फेवरेट सीन टू लुक एट, और इससे बढ़िया फीलिंग कुछ नहीं है, क्योंकि आई जस्ट चेंज when I reach here. And then it was time to check in. We luckily did not get a line, and surprisingly we also did not get a line at the immigration or the security check, and we got done with all of it in under 45 minutes, which gave us like ample time to roam through the duty free, have dinner, and then eventually board the flight on time. On time to nahi, the flight actually got late. It got delayed by like 15-20 minutes, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या हो गया था. मैं अच्छा खासा लैंडस्केप में वो करते करते मैंने अपना फ़ोन रोटेट कर दिया. आई थॉट कि मैं इसको बाहर निकाल दूँ क्लिप को यहाँ से, बट इट इज़ टू ब्यूटिफुल फॉर मी टू नॉट कीप इट. तो यू कैन प्रॉब्ली जस्ट रोटेट योर डिवाइसेज इफ़ यू वांट. एंड अनदर थिंग दैट सरप्राइज मी वॉज कि हमको टेक ऑफ करते करते 1 घंटा लेट हो गया. वी टुक ऑफ एट लाइक 11 PM, which was an hour later from the scheduled time, and but we still landed at like the scheduled time, which is probably why Singapore Airlines is the best airlines in the world. After the takeoff, they like serve you drinks and dinner and all of that. और मेरे को कुछ देखना था फ्लाइट के इंफोटेनमेंट पे, मेरे को मिल गया सैयारा, और मैंने अब तक देखी नहीं है. एंड मेरे को सबने बोला कि भाई तूने अब तक क्यों नहीं देखी है. आई जस्ट थिंक कि इसलिए नहीं देखी थी बिकॉज दिस वाइब वॉज इमैक्यूलेट,
क्योंकि आई लव द मूवी एंड वॉचिंग इट हेयर जस्ट मेड इट इवन बेटर विद लाइक 4 glasses of wine. And then we landed at like the world's best airport. And what do I say about Changi? Bhai, I was mesmerized. The moment we landed, I was mesmerized. मेरे को अपने इंडिया के एयरपोर्ट्स अच्छे लगते थे एंड वो अच्छे हैं, बट ब्रो वॉट इज़ दिस एयरपोर्ट, इट इज़ अमेजिंग. और मतलब मेरे को अपने आप को दिखाने का मन ही नहीं कर रहा था. मैंने कैमरा फ्लिप करा भी, बट मेरे को लगा कि भाई ये क्या, क्यों दिखाऊं मैं, ये जो एयरपोर्ट है जो इतना बढ़िया है देखने के लिए, मैं अपने आप को क्यों दिखाऊं. तो मैंने वापस फ्लिप करके मैंने कहा भाई तुम एयरपोर्ट ही देखो, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था एयरपोर्ट देख के. बट वी हैड लाइक ओनली एन आवर और मेरे को चाहिए थी कॉफ़ी, क्योंकि इसके बाद सीधा बोर्डिंग करनी थी, क्योंकि सिंगापुर में सिक्योरिटी चेक होता है दोबारा. तो मैं आया और मैंने कहा भाई मेरे को कॉफ़ी चाहिए और मेरे को कुछ लोकल जगह पे जाना था. सो आई वेंट टू लकिन कॉफ़ी. आई हैड नॉट सीन दिस एनीवेयर एल्स and I ordered this iced orange Americano. If you know me, you know that I love my Americano and my cold brews. So this is something जो हमने घर पे बनाया था, but I have not seen this anywhere in like India on you know any cafe's menu. तो मेरे को लगा कि भाई this is crazy, मतलब मेरे को ये पी के देखनी है. And this costed around like $12.8 for two, so 6.4 for one, which is roughly 450, 460, 470 rupees. तो हाँ, बट दिस वॉज अमेजिंग भाई. मतलब द होल एक्सपीरियंस ऑफ द सिंगापुर एयरपोर्ट और सारा कुछ वॉज अमेजिंग. एंड इवन दो वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ, आई न्यू दैट आई वॉज गोइंग टू कम बैक, क्योंकि मेरा वापसी में 4 घंटे का लेओवर है. सो आई वॉज ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड कि अच्छा ठीक है, सारे एयरपोर्ट्स जूल ये वो फलाना ढमकाना सब कुछ देख लूँगा मैं उतने में. तो मेरे को कुछ इतना ना बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं था. आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉफ़ी और मैंने भाई ऑर्डर कर दी. देखते ही मैं कहीं और गया भी नहीं, एंड फ्रैंकली कहीं और जाने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि वी हैड टू रन टू आवर गेट बिकॉज आई न्यू कि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होने वाला है दोबारा. ओके, सो वेयर आर द सिंगापुर एयरपोर्ट, वेयर इन चांगी एंड इट इज़ what 7:15 a.m. in the morning. It is like 5:45 इंडिया टाइम. फाइनली जाके कॉफ़ी लिया, क्योंकि मैं फ़्लाइट में इतनी वाइन पी चुका हूँ और इतना वो कर चुका हूँ मूवी देखने के चक्कर में कि मैं नींद ली नहीं है. मैं 2 घंटे सोया हूँ. बट दिस एयरपोर्ट इज़ ब्यूटिफुल. इट इज़ आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन कि कितना बढ़िया एयरपोर्ट है. और अब देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि नाउ आई हैव अ फ्लाइट टू बोर्ड इन लेस देन एन आवर एंड विल सी वेयर इट गोज़. 732. Yeah. So I've taken these orange Americanos. We have finally checked into the villa, and oh my god, this place, this villa is amazing. I am in my room right now. Look at the view. I mean, for Bali and for a villa like this view is amazing. This is my room, of course. Just beer there. Basics when you come to Bali, when you come to vacation. This is the first thing that we do. But भाई फॉर चांगू दिस विला इज़ अमेजिंग. मैं पहले भी चांगू में विला में रहा हूँ एंड वो बहुत ज़्यादा बोहो शीक टाइप बना हुआ था, बट दिस इज़ अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ बोहो बाली वाइब्स एंड यू नो सर्टन लग्जरी. तो आई मीन बिकॉज आई एम विद फैमिली, सो आई एम नॉट रियली मिसिंग एनी थिंग. एंड ऐसा लग रहा है कि मतलब दिस इज़ लाइक जस्ट परफेक्ट ऑफ how a villa is supposed to be. This is approximately like 1 hour away from the airport. That is how long it took. उसके बाद we reached here at 2. They refused to give us the villa क्योंकि villa ready हो रहा था because the previous guests just checked out around 12:31. तो उन्होंने हमको 2 बजे विला देने से मना कर दिया. 3 बजे हमको फाइनली विला मिला है. Now we're changing. We'll go to the Lava Anchor market and then we'll go to Labrisa. बहुत कन्विंसिंग लगी है घर वालों को लेके जाने में, क्योंकि they are of course very tired from all the traveling. एंड दे वी लाइक आज चिल करते हैं, विला में बैठते हैं. बट आई वाज लाइक नहीं भाई, आइटिनरी बन चुकी है, अब उस हिसाब से ही चला जाएगा, उस आइटिनरी के हिसाब से ही चलेंगे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लव एंकर मार्केट इन चांगू. इट इज़ 40 minutes अवे फ्रॉम हियर. एंड उसके बाद विल गो टू लबरीसा. तो क्योंकि पहला सनसेट बाली का, आई मीन आई जस्ट वॉन्टेड टू बी एट अ ग्रेट प्लेस. आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड इट एट द विला.
तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टेकन केयर ऑफ. उसके अलावा द ओवरऑल फ्लाइट वॉज अमेजिंग. सिंगापुर एयरलाइंस 100 on 100. The food, the service, the quality of the flight, the ambience, the crowd, everything was amazing. And I mean, I've traveled in a lot of airlines, and this was my first time in Singapore Airlines, and I think I've been spoiled for the future because you cannot compete with whatever like I've gotten यहाँ पे सिंगापुर में, right? ये जो सिंगापुर एयरलाइंस की सर्विस है, द सिंगापुर एयरपोर्ट, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला सिंगापुर एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने का, टू बी ऑनेस्ट, इस बार, क्योंकि लेओवर बहुत छोटा था. बट व्हेन वी गो बैक, लेओवर लंबा है, 4 घंटे का लेओवर है, तो तब शॉपिंग भी होगी, तब सिंगापुर एयरपोर्ट एक्सप्लोर भी होगा, तब सब कुछ होगा. तो आई हैव नो रिग्रेट्स कि मैंने अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा, बिकॉज आई नो आई विल हैव एम्पल टाइम व्हेन आई गो बैक, बिकॉज आई मेड श्योर दैट आई बुकड एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट फ्रॉम बाली सो दैट आई गेट एक्स्ट्रा टाइम एट द सिंगापुर एयरपोर्ट. मैं 2 घंटे बाद की फ़्लाइट भी थी एक, बट मैंने वो बुक नहीं करी. मैंने सुबह 10 बजे की फ़्लाइट बुक करी है वापसी में, सो दैट आई गेट लाइक अ 4 hour लेओवर इन सिंगापुर, विच इज़ लाइक इनफ, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही टर्मिनल होगा एंड शॉपिंग होगी और एयरपोर्ट एक्सप्लोर करना होगा. 4 घंटे उसके लिए बहुत है. तो अभी आई जस्ट गो, आई टेक अ शावर, आई गेट रेडी एंड देन वील हेड आउट टू द लव एंकर मार्केट एंड फॉलोड बाय लब्रीसा. आज थोड़ा अर्ली वाइंड अप करने का प्लानिंग है बिकॉज टुमारो इज़ फिन्स डे. कल पूरा दिन फिन्स बुकड है. सुबह 11-12 बजे से जाके मैं फिन्स में बैठ जाऊँगा एंड रात तक होपफुली वहीं रहूँगा. सो इट इज़ एन एक्साइटिंग डे टुमारो. मतलब मेरा बाली वापस आने का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस वाज फिन्स. तो आई मेड श्योर दैट आई स्पेंड एन एंटायर डे देयर. जब मैं पिछली बार आया था तब भी हमने एक पूरा दिन फिन्स को दिया था. हम सुबह 1 बजे चले गए थे और फिर हम 8-9 बजे तक वहाँ पे थे. इस बार भी सिमिलर प्लानिंग है एंड लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट. बट राइट नाउ आई जस्ट गो, आई गेट अ शावर, आई गेट फ्रेश, आई गेट रेडी एंड देन विल हेड आउट. चेंज इन प्लान्स, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 4:45 PM. वी आर गोइंग स्ट्रेट टू लब्रीसा एंड नॉट टू लव एंकर मार्केट बिकॉज मैंने अभी टाइमिंग देखी सनसेट की एंड द सन सेट्स एट 6:10 PM. And anybody who knows about Labrisa knows that it's famous for the sunset, and I do not want to miss it. The only reason that I put it in the itinerary was for the sunset. तो लव एंकर अभी स्किप कर रहे हैं. I'll see if we can go some other day, if we can just squeeze it in किसी और दिन की आइटिनरी में, because we have a few open days, तो कर सकते हैं. But अभी we going straight to Labrisa and I have just gotten ready. Please ignore the mess. This is the outfit. ये मेरी लीस्ट फेवरेट शर्ट थी तो मैंने पहले दिन पे पहन के ख़त्म कर दी है ताकि मेरे को अब और किसी दिन पे स्ट्रेस ना रहे कि मेरे को अभी वो पहननी है. तो मैंने ये शर्ट पहन के आज ख़त्म कर दी है क्योंकि आई डू नॉट वांट टू हैव अ बैड आउटफिट एंड उसको फिर मैं सोचता रहूँ कि भाई अच्छा इसको मैं कब पहनूँ, मेरे को आउटफिट पसंद नहीं है. एंड मेरे को पता है अपना, मुझे पता है कि इवेंचुअली आई विल एंड अप नॉट वेयरिंग इट एट ऑल. सो आई जस्ट वोर इट ऑन द फर्स्ट डे एंड आई जस्ट गॉट डन विद इट कि ठीक है. तो अब now we're going to Labrisa and I will see you there. Out on Canggu roads for the first time in this trip and these roads just brought it all back for me भाई. मतलब मेरे को पूरी फील आ गई सारे ट्रिप की एक ही बारी में इन रोड्स पे बाहर निकल के because they just brought it all back. Okay, so the update is कि we still miss the sunset at Labrisa क्योंकि Canggu का ट्रैफिक इतना है कि भाई तुम नहीं यहाँ पे कुछ भी टाइमली जो तुम सोचते हो वो तुम नहीं कर सकते. But the thing is that this place is worth the hype. This place is worth missing the market for. This place is worth even after the sunset. Let me show you the place. एक second. Look at the place man. Look at the vibe. और ये इनका ऑफ टाइम है by the way. I mean ये sunset day club है and ये इनका ऑफ टाइम है और इनके ऑफ टाइम में वाइब है. मैं यहाँ पे अब ऑलमोस्ट डिनर के लिए ही हूँ एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट सो वर्थ इट कि यू कांट इवन इमेजिन कि कितनी अच्छी वाइब है यहाँ पे. आई जस्ट फील सो गुड. मेरे को फील नहीं आ रही थी थोड़ी सी ट्रिप की बट यहाँ आके यू गेट द प्रॉपर बाली फील्स. मेरे को सब वापस आ गया है. जब मैं 2 साल पहले आया था एंड हाउ इट फेल्ट एंड वाई आई वांटेड टू कम बैक टू दिस प्लेस बिकॉज इट इज़ सो वर्थ इट. आई डोंट थिंक यू गेट दिस एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. आई लव थाईलैंड, आई लव अदर प्लेसेस बट यू डोंट गेट दिस वाइब, यू डोंट गेट दिस क्राउड. आई मीन टू गेट अ टेबल हियर हमारा मिनिमम स्पेंड वॉज 1.2 million which is approximately 7,000 rupees and 3 लोगों में आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट क्योंकि उसके ऊपर एनीवे चला ही जाएगा. हम डिनर के लिए आए हैं
तो उन्होंने मिनिमम स्पेंड ऐसे बताया कि जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा बता रहे हैं वो, बट वो 7,000 ही था। एंड भाई आई थिंक मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्थ इट है वो। सो आई थिंक इट इज़ टाइम वेल स्पेंट, इट इज़ अ नाइट वेल स्पेंट। एंड जो पर्पस था मेरा इस रात का, जो पर्पस था मेरे को, जो मुझे करना था, वो आई थिंक आई हैव अचीव्ड इट। आई हैव achieved the Bali feels that I wanted. I've achieved whatever I wanted to do. So yeah, I am proud missing the market and coming here and just making it even past all the Canggu traffic, क्योंकि भाई मेरे को 20 मिनट के रास्ते में मेरे को 1.5 घंटा लगा यहाँ पे। बट that is how Bali is, that is how the Canggu traffic is. But I don't think you can replace this feel with anything in the world. I don't think anything will make this less worth it. कोई भी amount of traffic, कोई भी amount of time इसको कम वैल्यू नहीं कर सकता है। दी ओनली सजेशन फ्रॉम माई एंड वुड बी कि अगर तुम यहाँ आ रहे हो, अगर तुम लबरीसा आ रहे हो, तो तुम दोपहर में निकलो, 1 बजे 1:30 बजे निकलो, सो दैट यू आर हियर अराउंड 3-4 एंड तुम सनसेट देख रहे हो। बिकॉज आई कैन ओनली इमेजिन कि यहाँ से सनसेट क्या लगता है। मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे और मैंने यूट्यूब ब्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा देखा है, बट कमिंग हियर भाई बहुत ज़्यादा सरियल होगा यहाँ का सनसेट। आई डोंट थिंक मेरे को इस ट्रिप में टाइम मिलेगा दोबारा यहाँ के सनसेट देखने का। बट अगली बार अगर मैं आऊँगा, अगली बार मैं अगर लबरीसा आऊँगा और अगर मैं बाली आऊँगा, तो आई वुड जस्ट लीव द विला और वट एवर प्रॉपर्टी आई एम लिविंग एट 1-2 बजे, सो दैट आई एम हियर दोपहर में और मैं सनसेट देख के जाऊँ यहाँ पे। इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ सो वर्थ इट, इट इज़ जस्ट समथिंग दैट आई कैंट एक्सप्लेन। एंड वो दिख ही रहा होगा भाई, मतलब फिर से देखो एक बार, तुम फिर से देखो एक बार भाई। ये कैसे तुम, हाउ विल यू एवर एक्सप्लेन भाई, ये कैसे, हाउ विल यू एवर एक्सप्लेन दिस टू एनीवन एल्स? मतलब हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टू समवन हु चूजेस दुबई एंड ऑल ऑफ द अदर प्लेसेस ओवर दिस? तुम ये फील कैसे मिस कर सकते हो भाई? बीच साइड, ऑल ऑफ दिस, अमेजिंग क्राउड, अमेजिंग फूड, अमेजिंग ड्रिंक्स। मतलब आई डोंट थिंक दिस कैन बी एनी लेस वर्थ इट किसी भी ट्रैफिक या किसी भी चीज़ के चक्कर में। इट इज़ जस्ट अमेजिंग। अब देखेंगे विला जाके क्या करना है। आई थिंक मैं पूल में जाऊँगा एक बार, क्योंकि मेरे को पूल में यहाँ भी आना था। बट अब टाइम ऐसा हो गया है, वाइब ऐसी हो गई है कि पूल वाला टाइम ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट ड्रिंक्स एंड डिनर, बट आई विल नॉट एंड बाली डे 1 विदाउट गेटिंग इनटू द पूल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो बैक टू द विला, बट टिल देन आई एम गोना चिल हियर। भाई आई एम ऑफिशियली इन लव विद दिस प्लेस। 2 आवर्स लेटर और अभी भी हम यहीं हैं। हम खा चुके हैं, बट हम पिए जा रहे हैं। एंड मेरे को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करके मानेंगे, क्योंकि मतलब भाई द वाइब इज़ इमैक्युलेट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आई एम नॉट जस्ट इन्जॉइंग टुडे, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि कल मैं फिन्स जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बाली की फील किक इन हो चुकी है, एंड क्योंकि बाली की फील किक इन हो गई है एंड कल फिन्स जा रहा हूँ, तो फिन्स इज पीक बाली की। तो आई एम सो एक्साइटेड नाउ। और मेरे को बिल्कुल फील नहीं आ रही थी कल तक, मेरे को कोई फील नहीं आ रही थी कि मैं ट्रिप पे आया हूँ, मेरे को कोई फील नहीं आ रही थी कि मैं कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूँ। बट नाउ सिंस आई हैव हैड दिस नाइट एंड सिंस आई हैव कम हियर, मेरे को रियलाइज़ हो गया दैट आई एम ऑन द ट्रिप एंड दैट इट हैज़ स्टार्टेड एंड वट एवर आई हैड मैनिफेस्टेड एंड इमेजिन्ड फॉर द ट्रिप, वो सब शुरू हो गया। तो अब कल फिन्स जाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है, क्योंकि बिकॉज फिन्स इज़ लाइक मेन बाली, ठीक है। ये तो छोटे मोटे हैं, ये तो छोटे मोटे चीज़ें हैं जो आप जाते हो तो आप करते हो, क्योंकि अब आप 10 दिन के लाए हो तो आप क्या करोगे ना, आप फिन्स तो जाते नहीं रहोगे। बट फिन्स तो वो है ना, फिन्स इज़ दैट वन प्लेस जिसके लिए मैं वापस आया हूँ, राइट। इट इज़ द वन प्लेस दैट हैज़ ड्रिवन मी टू कम बैक टू बाली and which is why I'm here, and so I'm just super excited. I am still going to probably get into the pool when I get back to the villa, and I'll probably show you what I'll do when I go back to the villa. So yeah, I guess just stay tuned, man. I mean, the trip is just getting started. Everything that I'm going to do, you're gonna see and you're gonna be here with me, so stay tuned.